જેમાં વિશ્વમ ભરી યદા યદા હિ ધર્મસ્યમ ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્યમ તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય તદુષ્કૃતા धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्य की खोज में भटकते रहे, कहीं धोखा तो कहीं छल। इस घोर कलयुग में हम व्यस्त रहे, कहीं अंधश्रद्धा की खाई तो कहीं कपटी भोगी। थक गए हम मानव प्राणी, मन से हुए रोगी। एक दिन हुआ आगमन 3 लोक के श्रेष्ठ पत्रकार, साक्षात माँ विधाता को प्रसन्न कर मिला नाम उन्हें श्री महापत्रकार। भेद डाले सारे संचय, असत्य और अंधकार का किया विनाश। हमें अनुभव हुआ इस ज्ञान का और जीवन में आया प्रकाश। श्री महापत्र के मार्गदर्शन से बेशक खुल गए मुक्ति के द्वार। जागृत किया मनुष्य को कर्म से, अपने कर्तव्य का कराया भांग। कर्तव्य कर्म भक्ति कर्म और कर्म योगी के 3 चरणों से भक्ति को किया बड़ा ही आसान। श्री राम और श्री कृष्ण से लगते धन्य हो जाते जब हम करते श्री महापत्र रूपी दर्शन। यह मार्ग में मुक्ति का आज हम करते श्री महापत्र के चरणों में नमन। आज हम करते श्री महापत्र के चरणों में नमन। जय माता। महाशक्ति ने हाथ रे, हे शोभे महाशक्ति ने हाथ रे, हे शोभे महाशक्ति ने हाथ रे, हे शोभे विश्वंभरी ने हाथ रे, त्रिशूल ते जाड़ू, हे मानु रूप ए मां साक्षात रे, हे मानु रूप ए मां साक्षात रे, त्रिशूल ते जाड़ू। प्रचंड ऊर्जानु परम स्वरूप छे, प्रचंड ऊर्जानु हे मां महाशक्ति परमेश्वरी मां परम ऊर्जा आ त्रिशूल मां समावनार तेज पुंज स्वरूप आप छो। हे मां रुडु दिव्य स्वरूप एवं तेजस्वी त्रिशूल मां तमारा हाथ में अति सुंदर लागे छे। हे मां सर्वना विकट समय सहाय करनार, दुख हरनार आ तमारू त्रिशूल मंगलकारी अलौकिक छे। हे प्रचंड ऊर्जानु परम स्वरूप छे, एनी शक्ति शाश्वत ने अनूप छे। ये तो हरे सर्वोनु दुख रे, ये तो हरे सर्वोनु दुख रे, त्रिशूल ते जाड़ू। समाहित त्रणे भुवन छे, एमा समाहित है हे मां आ अद्भुत शोभायमान त्रिशूल त्रणे लोकनु सर्जन करवानी क्षमता धरावनार अवर्णनीय छे। हे मां आखा जगनो आधार आ त्रिशूल सर्जन पालन संहारनु प्रतीक छे। त्रिशूलनी ऊर्जा अधर्मनो नाशकारी बनी तमामना दुख हरनारू छे। हे एमा समाहित त्रणे भुवन छे, ए तो जगनु तारण ने हरण छे। ये तो जग आखानो आधार, ये तो जग आखानो आधार, त्रिशूल ते जाड़ू।
સંહાર કરવા શિવજીને આપ્યું સંહાર કરવા હે માં, તમે શિવજીને સંહારનું કાર્ય સોંપી શિવ શક્તિને પૂર્ણ બનાવ્યા છે. હે માં, તમારી શક્તિનું પ્રતિબિંબ એવું તેજોમય સ્વરૂપ આ ત્રિશૂળ ઘર ઘરમાં બિરાજે છે. જગનો આધાર બની આ ત્રિશૂળ ધર્મનો આધાર છે. એ સંહાર કરવા શિવજીને આપ્યું ત્રિશૂળે આખું જગ તમ કાપ્યું. હે શિવ શંકરે ધર્યું હાથ, હે શિવ શંકરે ધર્યું હાથ, હે ત્રિશૂળ તે જાડું. હે શોભે મહાશક્તિને હાથ રે, હે શોભે મહાશક્તિને હાથ રે, ત્રિશૂળ તે જાડું. હે શોભે મહાશક્તિને હાથ રે, હે શોભે વિશ્વંભરીને હાથ રે, ત્રિશૂળ તે જાડું. હે માનું રૂપ એમાં સાક્ષાત રે, હે માનું રૂપ એમાં સાક્ષાત રે, ત્રિશૂળ તે જાડું. હે ત્રિશૂળ તે જાડું, હે ત્રિશૂળ તે જાડું, હે ત્રિશૂળ તે જાડું. હે શક્તિ ચડી અબ સમર રણ મદાન મોન ડારતી. શક્તિ ચડી અબ સમર રણ મદાન મોન ડારતી. ગર્વ માયા લોભ મત્સર કામ ક્રોધ હારતી. સર્વકાલે સૃષ્ટિમાં શુભ જય ધ્વજાઓ રાજતી. ત્રણેય ભુવનમાં ઢોલ ત્રાસા વિજયનો બધ વાજતી. ત્રણેય ભુવનમાં ઢોલ ત્રાસા વિજયનો બધ વાજતી. વિજયનો બધ વાજતી, વિજયનો બધ વાજતી. જેમાં વિશ્વંભરી હે માનવી, એક મારા અંદરના ભાવને જાણીતો જો કે આજે મારું ઘર મંદિર શા માટે છે. હું શા માટે સદાય પ્રસન્ન રહું છું. આઠે પોર આનંદ નહીં પણ આનંદથી આઠે પોર જીવું છું. કારણ કે મારું ઘર મંદિર છે જ્યાં સ્વયં શ્રી મહાપાત્રનો સાથ છે. શ્રી મહાપાત્ર દ્વારા મળેલા વિચારો છે. શ્રી મહાપાત્ર દ્વારા મળેલા સદગુણોનો ભંડાર છે. ઘર એક મંદિર એટલે કે જ્યાં માં શક્તિનું સ્થાપન છે. સ્થાપન એટલે મોક્ષનો દ્વાર છે, જ્યાંથી આગળ વધવા માટેનો રસ્તો મળે છે. સ્થાપન પહેલાંનું મારું જીવન કેવું હતું તે જાણો, અને ઘર મંદિર બન્યા પછી જીવન કેવું છે તે પણ જાણો. સ્થાપન પહેલાં મારા સ્વભાવમાં અવગુણોનો પાર ન હતો. રાગ દ્વેષ દેખાઈ પડ્યો જીવન જીવતા હતા. સમાજમાં કેમ રહેવું, ઘરમાં કેમ રહેવું, પરિવારમાં કેમ રહેવું, બીજા સામે કેમ બોલવું, જીવન જીવવાની રીત જ હું કંઈ જ ખબર ન હતી. આડેધડ અને બેફામ જીવન જીવતા હતા. ત્યારે ઘર મંદિરમાં માં શક્તિના સ્થાપન થકી મોક્ષ દ્વાર તરફ જવા માટેના માર્ગ ઉપર પગ મૂકતા આ બધી જ રીતો શીખવનાર શ્રી મહાપાત્રનો સાથ મળ્યો અને ઘરના લગભગ બધા જ પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ ગયું. સાથે સમજણ મળી અને સાથે મને મારી ફરજ સમજાણી છે, જેથી સ્વનો ભાવ બદલવાની કોશિશ કરી એટલે સ્વભાવ બદલ્યો અને હજી પણ કોશિશ નિરંતર ચાલુ જ છે. સ્થાપન પહેલાં ગમે તે વસ્તુ ગમે ત્યાં મૂકતા, જેથી જરૂર પડતા વસ્તુ ના મળે તો ક્રોધ આવતો, ગાંડાગલા થઈ જતા. પણ ઘરમાં થકી વસ્તુઓને વ્યવસ્થિત પોતાની જગ્યાએ પાછી મૂકવાની ટેવ પડતા મન પણ શાંત થયું, નિરંતરતા આવી અને હસતું સમય મળી જતા આનંદ પણ આવે છે. સ્થાપન પહેલાં દરેકની વાતોમાં આવીને ખોટાની ગણીઓ રહેતી હતા અને પછી દુઃખી થતા હતા. ત્યારે ઘર મંદિર બનાવવાનો જેમને પ્રયોગ આપ્યો છે એવા શ્રી મહાપાત્ર ધ્યાનમાં રાખી તેઓ જેવો જીવન જીવાય છે
તે જ રીતે કરવાથી મા સાથની નજીકતાનો અહેસાસ થાય છે. આવી સુંદર 9 મંકાની માળાનો પ્રયોગ, 17 વૈદિક સદગુણોના આચરણનો પ્રયોગ, ઘરને મંદિર બનાવવાનો પ્રયોગ અને જન્મોજન્મથી ભટકી થયા તેમાં ચક્રમાંથી હાથ જલીને ખેંચીને બહાર કાઢીને મા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ આપનાર વીર પુરુષ, યુગ પુરુષ, શિવ સ્વરૂપ સ્વયં શ્રી મહાપાત્ર છે. આજ તે મારા અંતિથી લેતા આનંદનો રહસ્ય. આ માત્ર મારો નહીં પણ આવા લાખો લોકોના ઘરને શ્રી મહાપાત્રએ મંદિર બનાવ્યા છે. તમે પણ આ વિચારોને આચરણમાં લઈને તમારા ઘરને મંદિર બનાવી તો જોવો. આનંદની રીલમીલ થશે ને જરૂરથી થશે. જય મા વિશ્વંભરી. Jai Ma Vishwambari. Today many of us recite the names of gods and goddesses, but often we do not the true way devote ourselves to them. Shri Mahapatra, the founder of Ma Vishwambari Tirth Yatra Dham, has illuminated the path of true devotion through 3 simple steps: Kartavya Karma, Karma Bhakti and Karma Yoga. First, Kartavya Karma. This is the duty that must be performed. Fulfilling this is the duty that must be performed by each individual, whether one is studying, farming, running a business, or engaged in field of work. Fulfilling this is the duty with honesty and morality is known Kartavya Karma. Second, Karma Bhakti. Alongside Kartavya Karma, one must practice Karma Bhakti with dedicating time from our daily routine to engage in acts of devotion. Bhakti without karma hold no meaning because we live on the land of karma. Performing our duties with a pure heart and unwavering faith constitute the highest form of worship. Third, Karma Yoga. After practicing Karma Bhakti, we aspire to become Karma Yogis. A Karma Yogi is someone who, having performed their duties with acts for devotion with sincerity and faith, acts for the greater good of society without any selfish motives. Karma Yoga embodies selfless action for the benefit of all. By following these steps shown by Sri Mahapatra, we can truly recite the names of gods and goddesses in meaningful and joyful and fulfilling life. Jai Ma Vishwambari. સર્વે શક્તિઓમાં મોટું તારું નામ છે. 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 હે ત્રિભુવન સર્જન હારી માં તોય તું બાળ સર્જન હારી માં તોય તું બાળ કુંવારી. સર્વે શક્તિઓમાં મોટું તારું નામ છે. સર્વે શક્તિઓમાં મોટું તારું નામ છે. સર્વે શક્તિઓમાં મોટું તારું નામ છે. સર્વે શક્તિઓમાં મોટું તારું નામ છે.
सघળી सताए सर्वोपरि तू सघળી सताए सर्वोपरि तू हे सजोड़े पद दे नारी रे तोय तू बाळ कुमारी सजोड़े पद दे नारी रे तोय तू बाळ कुमारी चार जुग स्थापित त्रण देवो ने निम्या चार जुग स्थापित त्रण देवो ने निम्या संसारी भक्ति प्रगटावी मां तोय तू बाळ कुमारी संसारी भक्ति प्रगटावी मां तोय तू बाळ कुमारी सर्वे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे 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 सतयुग मां उमैयाए माने रिझविया शंकर रे पार्वती रूपे आविया हे सत्य ने साथ दे नारी मां तोय तू बाळ कुमारी सत्य ने साथ दे नारी मां तोय तू बाळ कुमारी करी त्रेता जुग मां सीता ने सहायता शिव दोषी हन नारी मां तोय तू बाळ कुमारी अणु अणु एक गटाणी मां तोय तू बाळ कुमारी सर्वे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे 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 द्वापर मां सती द्रौपदीए माने सेव्या माथे उभा रही कौरव यदुमार हे कृष्ण अवतारे जानी मां तोय तू बाळ कुमारी खाली खपर भर नारी मां तोय तू बाळ कुमारी कलयुग मां घर मंदिरे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे सर्वे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे सर्वे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे सर्वे शक्तिओ मां मोटू तारू नाम छे जय मां विश्वंभरी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानींस्तत्वदर्शिनः। मानव जीवन अनमोल है जो माँ विधाता ने हमें दिया है और आदर्श जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में
एक अनुभवी मार्गदर्शक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मार्गदर्शन के बिना मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि अगर इंसान को सही मार्गदर्शन मिले तो वह जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसे सही मार्गदर्शन न मिले तो सक्षम होने के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आज हम जगहों का रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं, लेकिन जीवन के रास्तों के लिए दुनिया में ऐसा कोई मैप नहीं है जो हमें ये बता सके कि हम कौन हैं, आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक का मिलना आवश्यक है, क्योंकि सही मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसके पास अनुभव हो। ज्ञान से अधिक अनुभव श्रेष्ठ होता है और हमारे पास ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक श्री महापात्र है, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम दूसरों के जीवन को देखकर जीते हैं, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर हम दूसरों के बजाय श्री महापात्र के जीवन चरित्र पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महाशक्ति माँ विश्वम्भरी तक पहुंचने के बावजूद भी श्री महापात्र अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं और जो सत्य विचारधारा उन्हें माँ विश्वम्भरी से मिली है उसे निस्वार्थ भाव से सबको समझाते हैं। वे अपने स्व अनुभव से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष में ही आनंद है। इस युग में हमें अपने जीवात्मा के उद्धार का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। हमें अपने जीवन में मौजूद अवगुणों की परत को तोड़ना होगा। आज हम अपने जीवन में से अवगुण निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम हमेशा दूसरों के ही अवगुण देखते हैं। जब कोई दूसरा गलती करता है तब हम उन्हें तरह तरह की सलाह देते हैं, परंतु जब हम खुद गलती करते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। आज हमारे पास अवसर भी है और अनुभवी श्री महापात्र का मार्गदर्शन भी है। तय हमें करना है कि हमें क्या करना है। अगर हम समय अनुसार श्री महापात्र के द्वारा दिए गए 17 वैदिक सद्गुण और 9 मोती की विचार रूपी माला को ध्यान में रखकर जीवन जिएंगे तो हम एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। जय माँ विश्वम्भरी।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ विश्वम्भरी। श्री महापात्र अक्सर कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख जैसा कुछ नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य के लिए सुख तभी होता है जब उसे मनचाही चीज प्राप्त होती है, और दुख तभी होता है जब उसे जो चाहिए वह हासिल न हो। और ऐसा होने पर मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता है, भगवान को भी दोष देने लगता है। लेकिन उसे यह समझना बहुत ही जरूरी है कि उसके जीवन में उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके कर्मों के अधीन ही होता है। इसीलिए तो श्री महापात्र कहते हैं कि सदैव अच्छे कर्म करें, हम ऐसा जीवन जिए जिससे समाज का, राष्ट्र का, देश का उद्धार हो। स्व के लिए नहीं लेकिन समाज के हित में सोचे और निस्वार्थ भावना के साथ कार्य करें। भगवान वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, अपितु भगवान वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अटल विश्वास, एक ऐसा भरोसा, एक ऐसी आस्था को जब हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारा उद्धार होगा, होगा और होगा ही। लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए? तो भरी सभा के अंदर अपमान सहने वाली द्रौपदी जैसा, सालों सालों तक सब्र का इंतजार करने वाली सबरी जैसा, खुमारी से जहर पीने वाली मीराबाई जैसा, शारीरिक बीमारियों को निडरता से ललकारने वाले रामकृष्ण परमहंस जैसा, और 17 कसौटियों में से खरे उतरने के बाद अनेक जन्मों के पश्चात महाशक्ति माँ विश्वम्भरी के साक्षात दर्शन करने वाले श्री महापात्र जैसा। यह है विश्वास का सही अर्थ। श्री महापात्र कहते हैं कि यदि हमें अनंत शक्ति पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं तो पक्षियों से सीखें, क्योंकि जब वह शाम को घर लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं होता है। आज विश्वास की बातें तो सभी करते हैं, सभी यही मानते हैं कि हमें अनंत शक्ति पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या वास्तव में हम उन पर विश्वास करते हैं? समय आने पर या मुश्किल परिस्थितियां आने पर हम सब भूल जाते हैं, परमात्मा पर से हमारा विश्वास चला जाता है और आई परिस्थितियों के पीछे का कारण भी हम उन्हीं को मानने लगते हैं। यदि मनुष्य भगवान पर भरोसा कर रहा होता तो वह उनसे धन, दौलत, सेहत, स्वास्थ्य, संबंध की मांग नहीं कर रहा होता, मन्नतें नहीं मांग रहा होता। श्री महापात्र कहते हैं कि एक सच्चा भक्त माँ के पास से शक्ति एवं हिम्मत की मांग करता है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है कि वह जो कुछ भी करेंगे वह उसके हित में ही होगा। वह जानता है कि उसके जीवन में उसे जो कुछ भी हासिल होगा, अच्छा या बुरा, वह सब उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, जो उसे भुगतना ही है। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास। तो क्यों ना हंसते हंसते आनंद के साथ उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाए। यह होता है एक सच्चा भक्त, माँ का आदर्श संतान। वह नहीं जो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके कर्महीन बनकर लोगों को असत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रभावित करते हैं। श्री महापात्र कहते हैं कि यदि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसे 5 ऋण बंधन में से मुक्त होना पड़ता है। माता पिता, माँ शक्ति, वैदिक संस्कृति, प्रकृति और गौ माता। लेकिन आज सभी धर्म और साधु संत यही मानते हैं और दूसरों को भी यही ज्ञान से प्रभावित करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करनी है तो संसार का त्याग करके 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का जप तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य एवं समाज को यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा करने से वह केवल अपने कर्तव्यों से ही दूर नहीं भागते, लेकिन समाज के प्रति भी उसका जो कर्तव्य है उसके योगदान में भी वो विफल होते हैं, जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि आचरण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आज हम इतने भाग्यशाली है कि माँ ने हमें इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया है।
वह मनुष्य जो एक बार ठान ले तो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। वह मनुष्य जिसके पास दूसरों से विपरीत मन और बुद्धि की स्वतंत्रता है। वह मनुष्य जो 17 वैदिक सद्गुण और 9 मोती की माला को अपने जीवन में आचरण में उतारकर अपना जीवन धन्य बना सकता है। वह मनुष्य जो सत्य को उजागर करके माँ का आदर्श संतान बनके शुद्ध आचरण, दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पितता के साथ अपने जीवात्मा का उद्धार भी कर सकता है। तो आइए हम भी माँ के आदर्श संतान बनकर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कार्य करके अपने जीवात्मा का कल्याण करें। जय माँ विश्वम्भरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय माँ विश्वम्भरी।